Content for Band 7. Make your notes. Card. Describe an activity that you usually do that wastes your time. अब हमने एक एक्टिविटी बतानी है जो हम करते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है. सो यहाँ पे हमारे पास जो सब क्वेश्चन है वो है व्हाट इट इज, व्हेन यू यूजुअली डू इट, व्हेन, व्हाई यू डू इट, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वेस्ट योर टाइम. सो वी हैव 4 सब क्वेश्चन ओवर हियर एंड यहाँ पे आपने इन चारों क्वेश्चंस को कवर करना है अपने क्यू कार्ड में कि आप वो एक्टिविटी क्या है, आप कब करते हो वो एक्टिविटी और आप क्यों करते हैं, और एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लगता है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इस एक्टिविटी पे. तो हम एक एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है एंड हियर इट इज. In all honesty, thinking about an activity that wastes my time was rather picking one activity from a long list of activities that I waste my time on. So out of all those activities, I think playing video games is the one that I regret the most. I play video games in the evening or on the weekends. I feel they are wasteful because they don't achieve my intended purpose. I think I play them to relieve my stress, but actually I end up feeling more stressed after playing them. The thrill of the win makes me play more and thus I end wasting hours on it, which in the end stresses me. Losing on the other hand makes me feel incompetent, which again ultimately makes me feel stressed. However, more than anything, I think it is wasteful because it doesn't benefit me in any way. Rather, I lose out on a lot of things in life because of playing these games. I feel like I would spend more time with my family if I didn't play them. I could also be playing outdoor activities or going to the gym instead, which would be beneficial for me from my health perspective. Another hobby I had in my childhood was reading books, but because of this I'm not able to read books as well. And reading novels always improved my mood because I felt I gained something after reading them. It didn't matter whether it was fiction or non-fiction. A lot of my friends also complain that in recent years I have stopped spending time with them. I always give the excuse that I'm busy, but I know that I would be able to spend plenty of time with them if I didn't play the video games. However, I also believe that there are people who are really able to enjoy video games and feel better after playing them. Thus, there are others who are actually able to make money by playing video games. For them, it might not be wasteful, but for me, it certainly is. So now, इस क्यू कार्ड को मैं आपकी माँ बोली में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके दिमाग में पॉइंट्स आ जाएं तो आप खुद भी इसे बना सकते हैं इंग्लिश में. तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन की. मैंने बोला कि ऑनेस्टली अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ जिस पे टाइम वेस्ट होता है, एक एक्टिविटी अगर लिस्ट में से है तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ. उनमें से जो एक्टिविटीज़ हैं मुझे लगता है कि वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करती हूँ और ज़्यादातर ये मैं इवनिंग में प्ले करती हूँ या वीकेंड्स पे. वीकेंड्स का मतलब है कि सैटरडे संडे. एंड मुझे ये बहुत ही वेस्टफुल लगता है क्योंकि कोई तुक नहीं है खेलने के लिए. एंड मुझे लगता है कि ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है, मेरी स्ट्रेस को रिलीव करता है, बट एक्चुअली मैं इसको खेल के और स्ट्रेस में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे होता है जीतना है जीतना है जीतना है और मैं बहुत टाइम इस पे वेस्ट करती हूँ जो एंड में मुझे और स्ट्रेस करता है. और अगर मैं लूज कर दूँ फिर तो भैया स्ट्रेस का तो लेवल ही कुछ और बढ़ जाता है. एंड आपको लगेगा कि मैं कितनी वो बात कर रही हूँ. आई लव मारियो, आई लव कॉन्ट्रा गेम्स, ऐसी मुझे गेम्स बहुत पसंद है. आई एम
80s born, 80s or 90s born. So yes, I'm fond of such games. However, more than anything, it is wasteful because it doesn't benefit me in any way. कहीं पे मुझे फ़ायदा नहीं है इसका, एंड मैं इस चक्कर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाती हूँ. एंड मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, या मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ, जिम जा सकती हूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकती हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ. इवन बचपन में ना मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, एंड इसके कारण अब मैं इतना ज़्यादा वीडियो गेम्स में खो चुकी हूँ, मैं बुक्स भी नहीं पढ़ पाती. नॉवेल्स पढ़ने का था, जैसे चेतन भगत की नॉवेल्स पढ़ती थी, और मुझे लगता था मैं कुछ ना कुछ उससे सीख रही हूँ, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, कुछ भी हो. इवन मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते थे कि मैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, एंड जबकि करना चाहिए यू नो फ्रेंड्स के साथ. और मैं हमेशा उनको एक्सक्यूज देती आई एम बिजी एज अ पी, आई डोंट हैव टाइम, एंड मैं वो टाइम वीडियो गेम्स के साथ लगी रहती थी. बट देयर आर पीपल जो इसको बहुत इंजॉय करते हैं खेलना, वीडियो गेम्स को. और इवन कुछ लोग हैं जो वीडियो गेम्स खेल खेल के पैसे भी बना रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दोज पीपल. इवन मेरी जो बेटियां हैं वो भी उनकी वीडियोस यूट्यूब पे देखती हैं. एंड बट एट द एंड मेरे लिए ये एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है, एंड मेरे को कुछ गेन नहीं हो रहा है. तो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द क्यू कार्ड जिसमें मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो क्या था, वो क्या है, आप कौन सी एक्टिविटी करते हो. मैंने कहा मैं वीडियो गेम्स पे अपना टाइम वेस्ट करती हूँ. कब करती हूँ? इवनिंग और वीकेंड्स पे. वाई यू डू इट? क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा स्ट्रेस को रिलीव करता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. एंड एक्सप्लेन करो कि कैसे ये आपके लिए वेस्टेज है, आपके समय की बर्बादी है. तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हूँ, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज थिंग्स मैं क्या कर रही हूँ? टाइम वेस्ट, जिसके ऊपर हमारा क्यू कार्ड है. तो चलिए अब मैं आपको लेके चलूंगी अपने फॉलोअप क्वेश्चंस की ओर. तो हमारा फॉलोअप क्वेश्चन है, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड लाइफ? I think balancing work and life is always a work in progress. We are always doing it, and it is not something specific. For example, if we go on a vacation with the family, we come back and spend extra time at work to make up the pending work. Another rather unhealthy way we achieve it is by cutting down on our sleep hours, but it takes a big toll on our mental and physical health. तो कहता है आप अपने वर्क जो लाइफ है और काम है उसको बैलेंस कैसे करते हो. तो मैंने कहा हमेशा ये चीज़ प्रोग्रेस में रहती है. मेरे अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं समथिंग स्पेसिफिक. जैसे कि अगर हम वेकेशन पे गए हैं फैमिली के साथ, तो जब हम वापस आए हैं तो हम एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं, सो दैट जो भी पेंडिंग काम है घर के सारे मिलके कर लें. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. एंड कई बार हम अपनी नींद खो देते हैं. दैट्स एन अनहेल्दी वे यू नो, जिसका इफेक्ट हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है. Second question, will you continue doing something when you are aware that it wastes your time? तो कहता कि आप कंटिन्यू करोगे वो काम करना जो आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है. आई थिंक दैट अरेज बैड हैबिट्स डाई हार्ड would be the best answer to this question. I think we do such things, we are addicted to them. I think it's very hard to give up on such activities, and it requires a lot of willpower. However, the realization that the activity is wasteful is the first step, and once people have that, it becomes easier to stop. पहले एक realization जरूर होनी चाहिए कि बंदे को लगे कि यार ये तो टाइम खराबी है, तभी वो चीज़ को ख़त्म कर सकता है. तो ये होना बहुत ज़रूरी है. कहते हैं ना कि बुरी आदतें जल्दी पीछा नहीं छोड़ती हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मेक पीपल प्रेशर्ड? लोगों को क्या चीज़ें प्रेशर करती हैं? आई थिंक देयर आर मिलियन ऑफ थिंग्स इन टुडेज लाइफ दैट स्ट्रेस अप us. For example, financial obligation, unreasonable work, deadline competition with others, and maintaining relationships. The pressure each puts varies according to the stage of life. For example, competition stress in the early stages when we are trying to get into universities or trying to secure a good job, and financial stress come a little later when we have managed the expenses of for the whole family. अब कहता है यार अलग अलग तरह के लोगों को स्ट्रेस है. किसी को पैसे का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को डेडलाइन का स्ट्रेस है, किसी को कंपटीशन का. डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं. अगर आपको भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट टू. लेट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. तो उसने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग तरह का स्ट्रेस होता है लाइफ में.
हर एक एज का स्ट्रेस अलग होता है। जब आप 12th कर लेते हैं, अभी आप आइल्स कर रहे हैं तो आपको आइल्स क्लियर करने का स्ट्रेस है। जब आइल्स क्लियर हो जाएगी, ऑफ लेटर का स्ट्रेस होगा, बाहर जाना है, पैसों का स्ट्रेस होगा। तो हर एक टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। लेट्स फोकस ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू सम पीपल रिफ्यूज टू अबाइड बाय द रूल्स? I believe there is a certain thrill in breaking rules and doing whatever we want. In some ways, it is exhilarating and freeing to not care about the rules and regulations. Actually, I believe it is good as long as we don't harm others, because it prevents life from becoming monotonous and boring. कहते कुछ लोग ना रूल्स तोड़ने में बड़े अच्छे होते हैं, उनको होता है कि हमने रूल्स नहीं फॉलो करने, बट अगर रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बट यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम कई बार रूल्स ब्रेक भी कर देते हैं तो ठीक है, बट हम उससे किसी को हार्म ना पहुंचे। बट अगर मैं बताना चाहूँ तो हमें रूल्स नहीं ब्रेक करने चाहिए। रूल्स ब्रेक करना मतलब कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, और जहाँ पे आपने डिसिप्लिन तोड़ा नहीं वहाँ पे आपने चीज़ें खोई नहीं। तो इसी के साथ हमारे ये क्यू कार्ड एंड फॉलोअप क्वेश्चंस डन होते हैं। अगर इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। सायनारा। आई होप आपको एक क्यू कार्ड क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है आईएलटीएस के किसी भी मॉड्यूल में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए हैं आईएलटीएस से रिलेटेड, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टिल देन, सायनारा।